أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی شروع کی باتیں اور تقریباً دو آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کل عرض کی تھی. کل ایک بات یہ بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر دلالت کرنے والی نشانیاں، بتلانے والی چیزیں دو ہیں، آیات کونیہ اور آیات قرآنیہ. دوسرے الفاظ کے اندر میں یوں سمجھیں، قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتی ہے، یعنی بتلاتی ہے. کوئی بھی قرآن پاک کی چھوٹی سی یا بڑی سی آیت لے لو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر سنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہوگا، یا اس کی صفات کا تذکرہ ہوگا، یا اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا تذکرہ ہوگا، یا اس کی قدرت کا تذکرہ ہوگا، یا دنیا کا تذکرہ ہوگا، یا آخرت کا تذکرہ ہوگا. تو معمولی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں آیات کونیہ. کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی وجود پر، اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، بتلاتی ہے. اسی لیے عربی کے اندر میں ایک کہاوت ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر. بہرہ اونٹ کی مینگنی کو کہتے ہیں. جنگل میں کسی جگہ کے اندر اگر اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی ہے تو جانے والا، گزرنے والا یہ سمجھے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرتا ہوا گیا تھا اور اس کی یہ مینگنی پڑی ہوئی ہے. اس پر سے علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر میں دلالت کرتی ہے. آیات
कुरानिया के अंदर में आयत कौनिया का अल्लाह तबारक व तआला ने तस्किरा फरमाया है। कुरान पाक की आयत खुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सिफ़ात वजूद पर दलालत करती है, बतलाती है। और वही आयत कुरानिया आयत कौनिया पर बहस करती है। ये जो अभी सूरह यूनुस की ये जो तीसरी आयत पढ़ी गई, यह है आयत निशानी, और इसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का तस्किरा फरमाया है कि अगर एक आदमी उसके पास में अगर वही इलाही नहीं पहुँचती, या उसके पास में किसी रसूल की बात नहीं पहुँचती, या नबी की बात नहीं पहुँचती, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि कायनात को देखकर कायनात के पैदा करने वाले पर उसके लिए ईमान लाना ज़रूरी है। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि अगर किसी बच्चे को आप जंगल के अंदर में छोड़ दो और मुक़द्दर में उसकी हयात और उसकी पैदाइश अगर लिखी हुई है और ज़िंदगी उसकी बाकी है, तो जवान हो कर के समझदार हो कर के जब वो आएगा बस्ती के अंदर में, तो मुवाहिद बन करके आएगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला को एक मानने वाला बन करके आएगा। ये फितरती चीज़ है, फितरत प्राकृतिक जिस चीज़ को कहते हैं कुदरती। जैसे ये तैरने वाले जो जानवर हैं या उड़ने वाले जो परिंदे हैं, तो उनको कोई सिखाता नहीं है कि तैरना किस तौर पर तैरना चाहिए, उड़ना किस तौर पर चाहिए। एक जानवर का बच्चा अभी पैदा होता है और उसके मुंह के अंदर में उसके माँ के थनों को रख दिया जाता है तो वो चूसता है। इसके अलावा इंसान का बच्चा, एक बच्चा पैदा होता है, कुछ घंटों के बाद में जब उसकी माँ अपना पिस्तान उसके मुंह के अंदर में रखती है तो ये बच्चा चूसना शुरू कर देता है। इस बच्चे को चूसना किसने सिखलाया, और इन परिंदों को उड़ना किसने सिखलाया, और इन जानवरों को जो तैरते हैं उनको तैरना किसने सिखलाया? इसी कुदरत का और इसी ताकत का नाम है अल्लाह। और यह फितरी चीज़, इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, अल्लाह ताला की मखलूक पर गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है। कल बताया था कि ये सूरह यूनुस ये मक्की है, और मक्का मुकर्रमा के अंदर में ईमानियत की वही नाजिल हुई। नमाज के अलावा जितने भी अहकाम हैं ये मदीना मुनव्वरा जाने के बाद में नाजिल हुए। शेख मोहम्मद रातिब नाबलूसी जो लबनान के एक मुफस्सिर हैं, मैं आज उनकी तफसीर को इस सिलसिले के अंदर में देख रहा था, तो उन्होंने सूरह यूनुस की तफसीर के अंदर में एक बात ये ज़िक्र फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में जो 30 पारे हैं, 30 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जमा किया था। इधर उधर लोगों के पास में आयतों की शक्ल में, सूरतों की शक्ल में, अज्जार पारों की शक्ल में लोगों के पास में मौजूद थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया, जमे कुरान और जमे मुसहब। ये जो हम आप कुरान पढ़ते हैं ये मुसहब उस्मानी कहलाता है। मुसहब यानी कुरान, और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इसलिए निस्बत की जाती है कि ये जमा करने का काम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, इसलिए इसका नाम है मुसहफ उस्मानी। तो शेख ने लिखा हुआ है कि कुरान पाक के अंदर में 30 पारे हैं। 30 पारों के अंदर में 10-10 और 10, पहले 10 पारे, और 11 से लेकर के 20 ये 10 पारे, और 21 से लेकर के 30 ये 10 पारे। उन्होंने लिखा कि 21 से लेकर के 30 तक जो पारे हैं 10, और उसके अंदर में जो सूरतें हैं वो अक्सर ज़्यादातर मक्की है। आप भी देखना
आखिरी 10 पारों के अंदर में जो सूरतें और आयतें हैं ये मक्की है, अहकाम बहुत कम है। और शुरू के अंदर में जो 10 पारे हैं 1 से लेकर के 10 तक, इसके अंदर में अहकाम ही अहकाम है, सारे के सारे अहकाम, ज़्यादातर अहकाम 1 से 10 पारों के अंदर में भरे पड़े हैं। 11 से लेकर के 20 तक के जो 10 पारे हैं उसके अंदर में दोनों है, यानी अहकाम भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और रिसालत और माद वगैरह के ऊपर में दलालत करने वाली आयतें और सूरतें भी हैं। इसके बाद इन्होंने फरमाया कि ये सूरह यूनुस ये 11वें पारे के अंदर में है और 11 से लेकर के 20 तक जो आयतें और सूरतें हैं इसके अंदर में अहकाम का भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है और आखिरत का और अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने का, रसूलों पर ईमान लाने का जो ईमानियात की बातें हैं उसका भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा पालने वाला ये अल्लाह है। यहाँ कुम यानी तुम्हारा, इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि मानने वाले हैं मोमिनीन, उम्मत इजाबा जिसको कहते हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल और अल्लाह और कुरान को नहीं मानते वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिसको उम्मत दावत कहा जाता है। उम्मत दावा, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, ये उम्मत इजाबा कहलाती है और दूसरे लोग जो हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसीलिए कुरान पाक ये मौजिज़ा है, क़यामत तक ये कुरान पाक बाकी रहने वाला है। इसलिए कि जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया के अंदर में आए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई मौजिज़ा लेकर दुनिया के अंदर में भेजा। जब तक नबी दुनिया में मौजूद रहे वहाँ तक उनकी नबूवत बाकी रही और उनका मौजिज़ा बाकी रहा। जैसे नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया, आखिरत में चले गए तो उनकी नबूवत भी ख़त्म हो गई और उनका जो मौजिज़ा था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी हैं, आलमी नबी हैं, ज़माने के एतबार से भी आलमी, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी हैं और मकान के एतबार से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। रोए ज़मीन पर कहीं पर भी कोई इंसान बसता है यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और उम्मत इजाबा के लिए ज़रूरी है कि वहाँ तक अल्लाह के दीन को और अल्लाह के रसूल की बातों को वहाँ तक पहुँचाए। तो यहाँ पर इन्ना रब्बकुम से मुराद दोनों उम्मतें हैं, उम्मत इजाबा और उम्मत दावा, यानी ईमान वाले और जो ईमान नहीं लाए हैं वो भी यहाँ पर मुराद है। इन्ना रब्बकुम अल्लाहु, बेशक तुम सबका पालने वाला अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह की ज़ात कि जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों के अंदर में। सित्ततुन का माना 6, यौम इसकी जमा है अय्याम। 6 दिनों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। 7 आसमान हैं और 7 ज़मीन हैं। और जैसा कि कल भी अर्ज़ किया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला की कायनात इतनी बड़ी कायनात है कि ये जो मजर्रा शमसिया जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, सूरज चाँद सितारों वगैरह का जो निज़ाम है, ये कायनात के मुकाबले के अंदर में इसकी हैसियत ऐसी है जैसा कि बड़े चटियल मैदान के अंदर में प्याज के छिलके की हैसियत। खलक़स समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों के अंदर में। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने के बाद चाँद का, सूरज का, दिन का और रात का निज़ाम कायम हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं था। इसको, इस ज़माने को अज़ल कहते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात अज़ली है और अबदी है। अज़ल उसको कहते हैं
कि जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, और अबद उसको कहते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। अल्लाह की ज़ात अज़ली है और अल्लाह की ज़ात अबदी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो जब अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था, ये दिन का और रात का जो निज़ाम चलता है, ये सूरज के निकलने और गुरूब होने से या रात के आने और दिन के आने से ये निज़ाम चलता है, कुछ था ही नहीं। तो 6 दिनों के अंदर में कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया? इसका जवाब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दिनों का और रातों का निज़ाम आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने के बाद वजूद में आया। रात का निज़ाम, दिन का निज़ाम आसमानों और ज़मीनों, चाँद और सूरज, सितारों को पैदा करने के बाद वजूद में आया। ये सब वजूद में आ गया और लोगों ने रात और दिन का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। रात के घंटे और घड़ियाँ गिनना शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से आज चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन वगैरह के पैदा हो जाने के बाद तुम जो अपना हिसाब गिनते हो, तो 6 दिन और 6 रात के बराबर वक्त लगा था अल्लाह तबारक व तआला को आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने में। चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन नहीं थे, लेकिन अगर आज किसी चीज़ को बनाने के अंदर में अगर 6 दिन लगते हैं, तो यूँ समझो कि इतने 6 दिन लग गए अल्लाह तबारक व तआला को आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने के अंदर। फिर मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक दूसरा ये एतराज़ और सवाल लिखा हुआ है और उसका जवाब दिया हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये खालिक कायनात है, कादिर मुतलक है, किसी भी चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं है। सूरह यासीन के अंदर में भी है, इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कुन, यानी हो जा, फयकुन, तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला को कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये तो अल्लाह का मोहताज होना लाजिम आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात मोहताज है कुन कहने की। अल्लाह ताला की ज़ात कुन कहने की भी मोहताज नहीं है, बस अल्लाह इरादा करता है और वो चीज़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जब इतनी बड़ी और उसकी कुदरत इतनी बड़ी कि इरादा करे और हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इरादा क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला इरादा करता आसमान बन जाते, अल्लाह ताला इरादा करता और ज़मीन बन जाते। 7 आसमानों का इरादा करता, 7 ज़मीनों का इरादा करता, एक वक्त के अंदर में अगर इरादा करता, तो अल्लाह ताला के इरादे से 7 आसमान और 7 ज़मीन जो है वो वजूद के अंदर में आ जाते। क्यों 6 दिन के अंदर में बनाया? तो उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को और इंसानों को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी काम के अंदर में जल्दी नहीं करना चाहिए, आहिस्ता से वो काम करना चाहिए, संजीदगी के साथ में वो काम करना चाहिए। जल्दी करने के अंदर में काम बिगड़ जाते हैं। अल-उज़लत मिनश शैतान, जल्दी काम करना जो है ये शैतान का तरीका है, शैतान की आदत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दावत दी कि कोई भी काम है वो इत्मीनान से करना चाहिए। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। ज़मीन के अंदर में भी आज जो मक्का मुकर्रमा है, मक्का मुकर्रमा जहाँ पर काबतुल्लाह है, वो काबतुन का माना है उभरी हुई चीज़। ये पाँव जो वज़ू के अंदर में हम धोते हैं और 2 हड्डियों तक जो धोते हैं पाँव के अंदर में, इसको भी काब कहते हैं। बीच के अंदर में पाँव के ऊपर में जो उभरी जो हड्डी है उसको भी काब कहते हैं। एहरम की हालत के अंदर में वो पाँव के बीच के अंदर में जो हड्डी है उभरी हुई, उसको खुला रखना ज़रूरी है, वरना दम देना पड़े। तो ये काब उभरी हुई चीज़ को कहते हैं। काबतुल्लाह को भी काबतुल्लाह इसीलिए कहा गया कि पानी था, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बनाने का इरादा फरमाया
तो सबसे पहले जो ज़मीन उभरी ऊंचाई के अंदर में, बुलंदी के अंदर में, वो जगह है जो काबतुल्लाह जहाँ पर मौजूद है। और काबतुल्लाह की जगह जो है ये दुनिया का सेंटर है, 20 के अंदर में है। मुफ्ती सभी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह में भी लिखा हुआ है कि सऊदी अरब और उसके अतराफ के अंदर में जो अरबी समुद्र है ये सतह ज़मीन से 3000 फीट की बुलंदी के ऊपर में है, 3000 फीट की ऊंचाई के ऊपर में है। यानी ज़मीन नीचे है और समंदर का जो पानी है वो 3000 बुलंदी की ऊंचाई के ऊपर में है। साइंसदानों का ये कहना है कि ये हवा के दबाव की वजह से वो पानी दबा हुआ है, जमा हुआ है, वरना अगर हवा का दबाव न हो तो ये ज़मीन के ऊपर में पानी फैल जाए। लेकिन हमारा इस्लामी और ईमानी अक़ीदे के एतबार से ये कहना है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया को बचाना मकसूद है वहाँ तक ये रहेगा, वरना क़यामत आएगी तो ये पानी जो है ज़मीन के ऊपर में फैल जाएगा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को उबारा काबतुल्लाह के पास, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बरकरार हुआ। यहाँ कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं, चाँद, सूरज, सितारे वगैरह, उन तमाम चीज़ों से बड़ा पहला आसमान है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आसमान। सातवां आसमान सारे ज़मीन और आसमानों से बड़ा है। और उससे बढ़कर के कुर्सी है, वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीनों को घेर लिया है। अब कैसी कुर्सी है वो अल्लाह ही जानता है। अभी एक बात जिक्र करके मैं बताता हूँ। कुर्सी के ऊपर में अर्श इलाही है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये है अर्श इलाही। अब अर्श इलाही की कैफियत क्या, कुर्सी की कैफियत क्या, और अर्श इलाही के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला के बरकरार रहने का मतलब क्या, माना क्या। इसलिए कि हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह की कोई जीहत नहीं है, अल्लाह की कोई जीहत नहीं, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं, अल्लाह की कोई कैफियत नहीं। अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह के पाँव हैं, अल्लाह की ज़ात है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अलमाना मालूमुन वल कैफ़ु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन। अल्लाह के जो हाथ है कुरान पाक के अंदर में है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ तमाम लोगों के हाथ पर है। यहाँ तक कि एक हमारे दोस्त सऊदी अरब में जब मैं था, वो थे इमाम साहब, वही फरमाया करते थे कि बतलाने के लिए, समझाने के लिए, अल्लाह के हाथ को समझाने के लिए हाथ से इशारा करके भी नहीं बताना चाहिए, हाथ से इशारा भी नहीं करना चाहिए। उलमाए मुताखिरीन ने और उलमाए मुतकद्दिमीन ने इसके बारे के अंदर में फ़र्क है। उलमाए मुतकद्दिमीन लिखते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह का हाथ कैसा, अल्लाह का पाँव कैसा, अल्लाह की आँखें कैसी, अल्लाह का चेहरा कैसा, अल्लाह की ज़ात कैसी, अल्लाह ही जानता है। मुताखिरीन उलमा ने, बाद के उलमा ने इसके अंदर में तावील फरमाई। यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ यानी अल्लाह की कुदरत, वजहुल्लाही, अल्लाह का चेहरा यानी अल्लाह की ज़ात, और ऐन का और आँख का जो लफ्ज़ आया, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में हमारी आँखों के सामने यानी हमारी निगरानी के अंदर में कश्ती को बनाओ। इस तौर पर उलमाए मुताखिरीन ने तावील की। उलमाए मुतकद्दिमीन ने कह दिया कि इसकी मुराद अल्लाह ही को अल्लाह ही जानते हैं। तो ये आयत मुतशाबिहात कहलाती है। इनमें से ये भी एक आयत है कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बरकरार हुआ, बैठा, मुस्तवी हुआ। बैठने की कैफियत, बरकरार होने की कैफियत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल माना मालूमुन, इसका माना और मतलब तो मालूम है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कुर्सी पर बैठा तो उसका माना मालूम है। वल कैफु मजहूलन, किस तौर पर बैठा, कैसे बैठा, किस जिहत में बैठा और उसका चेहरा और उसकी ज़ात किस जिहत के अंदर में थी। वल कैफु मजहूलन, कैफियत मालूम नहीं थी। और फिर फरमाया कि वह सवाल अनहु बिदअतुन, ऐसे सवालत करना ये बिदअत है। बिदअत होने का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात नहीं किए। इसीलिए आयात मुतशाबिहात के बारे में कुरान पाक के अंदर में आयतें हैं कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, इन आयात की तावील और इन आयात का माना अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई जानता नहीं है। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इसका माना मतलब तावील कोई नहीं जानता है। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म के अंदर में पुख्ताकार है, कुरान हदीस तफसीर वगैरह का जिनको इल्म हासिल है, वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही, रासिखीन फिल इल्म यूँ कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, बस अल्लाह की ज़ात पर। और जैसे कि वो हमको मकतब के अंदर में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, इसके अंदर में पूरी अल्लाह की ज़ात और पूरी अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर में ईमान ले आया। यही आसान तरीका है और यही बेहतर तरीका है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र, अम्र हुक्म को अंजाम देता है। अजीब व गरीब बातें हैं, अजीब व गरीब चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व ताला अगर अर्श बरी पर से अगर कोई चीज़ फेंके तो वो चीज़ भी अल्लाह के सामने गिरेगी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर व फिक्र करना नहीं चाहिए। तफक्करू फ़ी खल्क़िल्लाहि वला तफक्करू फ़िल्लाहि, अल्लाह की मखलूक में कायनात के अंदर में गौर व फिक्र करो और अल्लाह की ज़ात के अंदर में गौर व फिक्र मत करो। मिशकात शरीफ के अंदर में भी रिवायत है कि आदमी गौर व फिक्र करता है कि फ़लानी चीज़ किसने बनाई, कि अल्लाह ने। आसमान किसने बनाया, अल्लाह ने। ज़मीन किसने बनाई, अल्लाह ने। पहाड़ किसने बनाया, अल्लाह ने। समंदर कितने बनाए, अल्लाह ने। वो किसने बनाया, अल्लाह ने। तो आदमी जब ऐसा गौर व फिक्र करता है तो उसके बाद में शैतान आता है और शैतान आ करके इस गौर व फिक्र करने वाले की दिल दिमाग के अंदर में वसवसा डालता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें जब अल्लाह ने बनाई तो अल्लाह को किसने बनाया। हदीस शरीफ के अंदर में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदमी के दिल के अंदर में जब ये ख्याल आवे, ये वसवसा आवे कि अल्लाह को किसने बनाया, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए और गौर व फिक्र करना बंद कर देना चाहिए। युदब्बिरुल अम्र, हुक्म को अल्लाह तबारक व तआला जारी फरमाते हैं। मा मिन शफीइन इल्ला मिन बाद इज़्निही, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर अल्लाह के यहाँ कोई शफाअत करने वाला नहीं है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने आयत को शुरू किया था इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है। फिर इसके बाद इन चीज़ों को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब है। ऊपर में था इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा पालने वाला अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह जो तुम्हारा पालने वाला है। अल्लाह के नाम को दो मरतबा जिक्र किया और अल्लाह के पालने वाले होने की जो सिफत और खासियत है ये भी दो मरतबा जिक्र फरमाई। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की तरदीद कर दी, शिर्क की तरदीद कर दी। अल्लाह की ज़ात के साथ में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर में कोई शरीक नहीं है,
इसकी तरदीद कर दी। किस तौर पर तरदीद हुई कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन बड़े बड़े आसमानों को पैदा किया, इन बड़ी बड़ी ज़मीनों को पैदा किया, अर्श, कुर्सी, लोह, कलम वगैरह कायनात और मखलूक को पैदा किया, तो उसके अंदर में कोई शरीक नहीं था अल्लाह तबारक व तआला का। तनी तन्हा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाया कि जब कायनात के वजूद के अंदर में कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह की इबादत के अंदर में भी कोई शरीक होना नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तुम्हारा पालने वाला है, फ़अबुदू, उसी की तुम इबादत करो। अफला तज़क्करून, नसीहत हासिल नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन, उसी की तरफ तुम तमाम को वापस लौट करके जाना है। जैसा कि अभी हाजी साहब ने बतलाया कि सब कुछ छोड़ करके जाना है। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको उसी की तरफ छोड़ करके जाना है। वअदल्लाहि हक़्क़न, ये अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, बरहक है। इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, उसी ने शुरू के अंदर में मखलूक को पैदा किया। अभी आयत के शुरू में बताया नहीं, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जिसने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया, तो शुरू के अंदर में पैदा करने वाला वही है। सुम्मा युईदुहु, दुनिया के अंदर में उसने पैदा किया, मौत दी, वफ़ात दी, और फिर मरने के बाद जो है दोबारा ज़िंदा करेगा। बास बादल मौत जिसको कहा जाता है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि ये दुनिया जो है, दुनिया ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। अमल करने की जगह है, ये जज़ा और बदले की जगह नहीं है। इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि अगर अदना दर्जा के एक आदमी को जो जन्नत दी जाएगी, वो जन्नत इस दुनिया से 10 गुनी होगी। अदना दर्जा के जन्नती को जो जन्नत दी जाएगी वो इस दुनिया से 10 गुनी होगी। तो दुनिया के अंदर में कैसे बदला दे सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है और आखिरत को बनाया है दारुल जज़ा। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम। अब आगे मरने के बाद आखिरत को क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? बदला देने के लिए, लियजज़िया, ताकि अल्लाह तबारक व तआला बदला दे। अब दुनिया के अंदर में 2 किस्म के लोग, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को न मानने वाले, मोमिन और गैर मोमिन, ईमान वाले और कुफ्र और शिरक वाले, तकवा तहारत परहेज़गारी वाले और फिस्क और फुजूर वाले। मजमूई तौर पर दुनिया के अंदर में 2 किस्म के लोग हैं। तो आखिरत के अंदर में भी बदला लेने के एतबार से भी 2 चीज़ें, या तो जन्नत या तो जहन्नम। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह तबारक व तआला बदला दे अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, बिलक़िस्त, इंसाफ के साथ। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया, लहुम शराबुन मिन हमीमिन, उनके लिए गर्म खोलता हुआ पानी होगा। व अज़ाबुन अलीमुन, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। बिमा कानू यकफुरून, इसलिए कि वो दुनिया के अंदर में कुफ्र करते थे, अल्लाह ताला की बातों का और अल्लाह के अहकाम का इनकार करते थे और ईमान लाते नहीं थे। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द से लेकर यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने आयात कौनिया का इस आयत के अंदर में तज़किरा फरमाया। इस आयत के अंदर में आयत कौनिया यानी कायनात की जो चीज़ें निशानी हैं उनको ज़िक्र किया। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला आगे ज़िक्र फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअ वल क़मर नूरा व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब। अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है कि जिसने सूरज को चिराग बनाया और चाँद को रोशन किया
सूरज की रोशनी जो है वो अपनी ज़ाती है, और चांद की जो रोशनी है ये सूरज की रोशनी उस पर अक्स पड़ती है, जिसकी वजह से वो चमकता है। और लोगों ने लिखा भी है कि जब चांद पर जब गए तो इन्होंने ज़मीन को चमकता हुआ देखा, जैसा कि ज़मीन के ऊपर में से चांद चमकता हुआ नज़र आता है। तो ज़िया कहते हैं सूरज को चमकता हुआ बनाया और चांद को रोशन बनाया। वक़द्दरहु मनाजिला, और उसके लिए मंजिलों को मुतय्यन किया। चांद की मंजिलें 29 है या 30 है, 29 या 30, जैसे कि महीना जो होता है वो 29 और 30 का होता है। इस तरीके से कभी महीने में एक दिन नज़र नहीं आता या 2 दिन नज़र नहीं आता। और ये सूरज जो है, सूरज उसके लिए मंजिल मुतय्यन है, उसके लिए भी मंजिल मुतय्यन, चांद के लिए भी मुतय्यन है। लेकिन चांद का जो हिसाब है ये गिनने के लिए आसान है। लिताअलमू अदद सिनीन वल हिसाब, चांद की मंजिलें इसलिए मुतय्यन की ताकि तुम सालों की गिनतियाँ और हिसाब किताब मालूम कर सको। आइंदा कल इंशाअल्लाह आगे अर्ज़ करेंगे।